So, we are here for the session on self confidence, boost your confidence. Self confidence again means in one own instinct, स्वयं का ज्ञान or potential shamta, and viewing oneself in a positive and realistic manner. One needs to believe that he or she has the ability to turn his or her thoughts into reality. Confidence doesn't come when you have all the answers, but it comes when have when you are ready to face all the questions. It is the characteristics that one needs to develop from within in order to build themselves, as it cannot be acquired or learned. A self confidence person is like when one is more optimistic, active, independent, gorgeous, and self controlled person. One can develop self confidence by having an internal survey of his or her abilities and need to be strong enough mentally and emotionally to battle the challenges of life with courage and self reliance. You need to believe in yourself so that others can believe in you. Your communication, your body language, all support to boost your confidence. Thus, in order to achieve your goal in life, self confidence is the key that takes you forward and makes you stand apart from the crowd and showcase your skills to the world and make them believe in you. So, now for boosting your confidence and bringing some tools, Mr. Shailesh Gupta is here as today's expert speaker. And this will be a very interactive session and request you all to be very participative. He's an inbound marketing strategies which is with a rich history of experience in guiding and mentoring creatives for 9 years. As a team leader in awareness building, he believes in the power of culture and community. Certified as a social leader, his educational background is architecture, uniquely intersect with graphics and business intelligence, creating a niche expertise that sets him apart in the field. Apart from this, he himself is very confident for this session, and I hope there will be a lot of takeaway from this session. Wish you all the best, Shailesh, and I now hand over the session to you. And for I hope everyone will be enriched with this session. So, uh, to you. Hello, welcome everybody who has joined today's for the session, and I'm glad the description that ma'am has shared. It encompasses a very important elements of building confidence, questions, curiosity, and it comes from within. So let's start how there are different tools which you can use in your everyday life to keep building your confidence, and you can do it. Everything's possible, and everything's is in your hands. So starting this auspicious day, 31st October, has its great importance for the unity, and today we are bringing message how confidence connects with the unity. So before starting, what can be the opposite of confidence? Anything that you think can be opposite of confidence, please take time and type in comments. We'll give you 10 seconds to type in comments. ओके ग्रेट. सो क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होता है. अगर आपके कोई भी आंसर है आप उसमें ज़रूर डालें. कमेंट सभी के लिए ओपन है. सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके ग्रेट. हम लोग ने एक आंसर यूज किया है, हमें मिला है, विच इज नाम बताएंगे. अमन नागर का आंसर आया है मिसट्रस्ट. बहुत अच्छा आंसर है और इसी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं फियर, मिसट्रस्ट, इसी सब यही सारी चीजें हैं जो आपको रोकती हैं कॉन्फिडेंट होने से. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा जवाब है मिसट्रस्ट, क्योंकि यूनिटी पे अगर हम जा रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इंटर रिलेट किया है कि कैसे कॉन्फिडेंस और फियर इंटर रिलेट होता है.
कम्युनिटी, यूनिटी रिलेट होता है कॉन्फिडेंस से। तो सबसे पहली स्लाइड पे हम आते हैं। जैसा कि आप सबने पोस्टर बैनर में देखा होगा, उसमें लिखा है तत्त्वम असि। इसका मतलब है आप वही हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। जहाँ भी आप ढूंढ रहे हैं, जो जवाब आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो सब आप ही के अंदर है। आपको अपने अंदर समाई हुई क्षमता को समझना है, उसे पुकारना है, उसे आवाज देना है। जिंदगी के हर जटिल प्रश्न का उत्तर आप ही में समाया हुआ है। आपकी इस यात्रा में वही है जो हमेशा आपके साथ है, आपका कॉन्शियंस। गांधी जी ने इसको हमें बचपन में इंट्रोड्यूस किया था स्कूल में, सेल्फ कॉन्शियंस। अगर आप उसकी सुनेंगे तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो तत्त्वमसि को मैं कैसे समझाना चाहूँगा? वो वो तत्व जो आप बाहर खोज रहे हैं, वो आप में और प्रत्येक जीव में समाया हुआ है। इसी को हम अगर इंग्लिश में समझें तो it's the inner wisdom that hold the key to your journey and solutions to every question your life presents. Great. Let's move forward. So the very important thing which brings diversity. If you are confident, you will see that diversity increases your confidence. The more people you meet, the more diverse culture you see, the more understanding you get how to appreciate different aspects of life. हो सकता है आपको कल तक रोटी पसंद थी, आपने किसी साउथ इंडियन से मिले और आपको समझ में आया कि ओके इडली का भी कितना इम्पोर्टेंस है। फिर आप किसी आदिवासी से मिले, आपको समझ में आया ओके मिलेट्स, रागी का कितना इम्पोर्टेंस है। आप किसी जिम पर्सन से मिले और जिम पर्सन ने आपको बताया कि बनानास कितने इम्पोर्टेंट है। तो अगर जितनी डाइवर्सिटी है, जितने नए लोग हैं, जब आप उनसे मिलते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीख रहे होते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करता है। अब इस चीज को अगर हमें आगे बढ़ाना है, तो आपके सामने एक पहला सवाल आने वाला है। आप लोग इस लिंक पे जाइए और बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं। क्योंकि ये सेशन पूरे भारतवर्ष के लिए है, तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि हम लोग कहाँ से आए। तो ये सवाल आपके कमेंट्स में आ चुका है और आप इस कमेंट्स में जाके अपना बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। और इस क्लाउड को हम आपके सामने शेयर करेंगे ताकि हम सब देख पाएँ कि हम लोग कहाँ-कहाँ से आए हुए हैं। तो इसके लिए आपके पास हैं 30 सेकंड्स। 20 seconds. Last 10 seconds. क्या हम लोग रेडी हैं शेयर करने के लिए? ओके, तो आपके सामने स्क्रीन शेयर की जाएगी। वाओ! यहाँ पे आ रहा है सिधरी, समरपुर, झारखंड, आजमगढ़, बिहार, भोपाल, कोलार, मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। तो हम लोग काफ़ी दूर-दूर से आप लोग जुड़े हुए हैं और मैं श्योर करूँगा कि आपको सभी को बहुत मज़ा आया है इस 1 घंटे में जो हम साथ में हैं। अब आपके लिए दूसरा सवाल है, ये सवाल सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेंट्स के लिए है। आपको डालना है आपका नाम और आपका नाम जिस भी शब्द से शुरू होता है, उस शब्द से जुड़ी हुई एक प्रशंसा अपने बारे में, खुद के लिए। इसके लिए फिर से आपको 10 सेकंड 20 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड मैं मान के चल रहा हूँ। आपको लिखना है अपना नाम, जिस शब्द से आपका नाम शुरू होता है, उस
शब्द से शुरू होती हुई प्रशंसा अपने बारे में आपको कमेंट्स में डालना है। तो इसके लिए आपके पास 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर जी का आ चुका है आंसर। इसके पहले भी और आंसर आए होंगे ना? सिर्फ ज्ञानेश्वर जी का है। चलिए, यही बहुत अच्छा नाम है ज्ञानेश्वर, और आपने अपना नाम शेयर किया हम लोगों के साथ। अ, ज़रूर आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ मैं। तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और प्रशांत जी का आया है जवाब। प्रशांत जी स्वर्णकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, कमेंट्स आ रहे हैं। ग्रेट, तो हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर जी, प्रशांत जी, आपके लिए तो ये सवाल स्पेशली है कि आप यहाँ से क्या लेकर जाना चाहते हैं? अगर ये हम दोनों के बीच में पहले से ही साफ हो, तो शायद आपके हिसाब से ये सत्र रहे, और पूरा समय जो मिल रहा है हम सभी के लिए वो सूत्र बन सके। तौहीद भाई का आया है, तौहीद आलम, बहुत बढ़िया। तो तौहीद जी, आप भी इसमें ज़रूर कमेंट्स में डालिए कि आप यहाँ से क्या लेकर जाना चाहते हैं? आप इस सत्र से क्या सीख के जाना चाहते हैं? What will you like to gain from this confidence boosting workshop or the session? ब्रिज किशोर शुक्ला जी का जवाब आया है, बहुत बढ़िया। तो अब सवाल ये है, और जिसके लिए हमारे पास फिर से 20 सेकंड है, कि आप यहाँ से क्या लेके जाना चाहते हैं? आप इस जो सेशन हो रहा है, इससे आप लोग क्या लेके जाना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? ये भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ताहिद जी का आया है, आई विल ट्राई टू ब्रश अप माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट टाइमिंग 20 सेकेंड्स। ग्रेट, तो इस टाइम में टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, वंडरफुल, अमन नागर का आया है और काफी क्लैरिटी है। वंडरफुल। लर्न टेक्निकल नॉलेज एंड बूस्ट अप माय कॉन्फिडेंस इन माय डे टू डे लाइफ, ज्योति जी का है। बहुत अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया है। टेक्निकल नॉलेज, यस, वी आर हियर टू लर्न टेक्निकल नॉलेज। दीज आर द टूल्स दैट विल हेल्प यू एवरीडे लाइफ to understand how you can keep building your confidence from the surroundings that you have. The surroundings, we mean it's the people, it's the environment, and it's even the objects that we see every day. Okay, great, let's move ahead. तो हमारी थर्ड स्लाइड पे आते हैं, स्टोरीज ऑफ एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि ये काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन हम लोगों ने बनाया हुआ है, बट इसके पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट की क्या ज़रूरत है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है स्वीकृति, और अगर इसको और अच्छे से समझा जाए तो इसका मतलब है अभी, आज, इस सेकंड जो चल रहा है उसको अभी स्वीकृत करना, कि आप यहाँ पे आए हैं कुछ सीखने के लिए, और इस चीज़ को हमने स्वीकृत किया है कि हाँ, हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं। आपने अपना नाम बताया, आपने अपने नाम को स्वीकृत किया, आपने अपनी प्रशंसा की, आपने, तो आपने अपने आप को स्वीकृत करते जा रहे हैं, अभी स्वीकृति देते जा रहे हैं कि ओके, एक इसको बोलेंगे इकोसिस्टम बिल्ड होता जा रहा है, एक लर्निंग का इकोसिस्टम बिल्ड होता जा रहा है।
ये सब चीजें जो भी मैं बताने वाला हूँ, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, इसमें मैंने बहुत ज्यादा फोकस रखा है किड्स के लिए भी, कि आप सभी जो एडल्ट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, आप ही लोग बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं या ब्रेक करते हैं। तो जितना कॉन्फिडेंट आप होंगे, जितने क्यूरियस आप होंगे, जितना आप उनको एक्नॉलेज करेंगे, यहाँ एक्नॉलेजमेंट की बात है। कई बार हमने देखा है कि अम, कहीं पे कोई साइन लगा रहता है, कोई बोर्ड लगा रहता है रोड क्रॉस करने का, तो अगर अगर हमने उसको देखा नहीं, तो शायद हम रोड एक्सीडेंट में जा सकते हैं। पर अगर हम आसपास अपने देख के चल रहे हैं कि हमें किस तरीके से आगे चलना है, हमारे आसपास क्या साइन लगे हुए हैं, कहाँ हमें साइलेंट रहना है, कहाँ पे हमें, अगर हम कोई सुंदर चीज छूते हैं तो उसका स्पर्श कैसा है, जो भी हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, उन सारे सेंसेस से हम हर चीज को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। जब हम सब्जी खाते हैं, तो या अगर हम मिठाई खाते हैं, तो हर मिठाई का स्वाद अलग अलग होता है। वो स्वाद को भी हम एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि हाँ, उसकी एक अलग मिठास थी, इसकी अलग मिठास है। तो जब आप एक्नॉलेज करते रहते हैं, तब आप ज्यादा प्रेजेंट फील करते हैं। अगर इसके लिए आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए, उदाहरण चाहिए, तो यहाँ मैंने एक फोटो लगाया हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देख पाए, तो यहाँ पे एक गुलाब रखा है, चाय का कप रखा है, कीबोर्ड रखा है, कुछ रिंग्स रखी हैं, और एक कॉपी रखी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें चीज समझ नहीं आ रही है, तो वहां पे आपको ये टेक्निकल स्किल बहुत काम आएगी, कि आप एक्नॉलेज करें कि आपको क्या समझ आ रहा है। अगर जैसे 4 चीजें हैं, उनमें से अगर आपको, अगर आपसे उसका रंग भी एक्नॉलेज कर दें कि हाँ चलिए, ये हरे रंग का है, या वो सर हैं, उन्होंने एक शब्द ये वाला एक्नॉलेज करके या स्वीकृति करके कुछ बोला था, तो आपने उस शब्द को पकड़ लिया। पर अगर वहीं पे आप इसके विपरीत जाते हैं, कि बस आपने अपने दिमाग में अपने ये है कॉन्फिडेंस किलिंग, कि आपने अपने दिमाग में समा लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये चीज समझ ही नहीं आ रही। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, और आप खुद से ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे हवा भी चल रही है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ लाइट भी है, ओके मैं कुछ शब्द सुन पा रहा हूँ, ओके कोई और व्यक्ति भी कुछ और कह रहा है, वहां से भी 2 शब्द आ रहे हैं, वहीं आपने वहां ध्यान लगाया, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी लिसनिंग पावर भी बढ़ेगी, और ओवरऑल आपका ग्रोथ बढ़ेगा। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब ना आप खुद पे सेल्फ डाउट करें, ना आप सामने वाले व्यक्ति पे सेल्फ डाउट करें, मतलब डाउट करें। कोशिश करें कि आप समझने की कोशिश करें कि क्या है जो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। अब अगर इसमें आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं 1 या 2 लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि अपना माइक ऑन करें। पहले आप रेज हैंड करें, आपके लिए माइक ऑन कर दिया जाएगा, और आप अपनी कहानी बताएं कि स्वीकृति से क्या फायदा हो सकता है, या आपने कभी महसूस किया हो कि हाँ, अगर इफ यू एक्नॉलेज दैट the fish is floating in the pond and the leaves are swirling, so how does that make you feel? If you acknowledge the place that you are sitting, that it's warm and you are feeling comfortable, how do you feel? या आप किसी से भी ऑफिस में किसी से कॉन्वर्जेशन करते हो, और वहां आपको एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति मिलती हो, तो आपको क्या लगता है? तो इसके लिए हम 2 लोगों को इनवाइट करेंगे। आप लोग, मैं 5 तक काउंट करूंगा, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, और जो भी हैंड रेस करेंगे, अमन जी उनमें से आपको चुन के हम लोग सबसे पहले हमारे एक पार्टिसिपेंट को मौका देंगे। एंड प्लीज टेक ओनली 1 to 2 minutes, बिकॉज वी हैव अ completely packed सेशन, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। और तब तक कमेंट्स जरूर करिए, तब तक वील आइडेंटिफाई हु विल स्पीक अप देयर स्टोरी ऑफ एक्नॉलेजमेंट। बोलो।
ओके ज्योति जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, और कोशिश कीजिए अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं तो और अच्छा रहेगा। आप सबके साथ बात कर सकती हैं। यू हैव 1 to 2 minutes, प्लीज। थैंक यू for raising your hand and speaking the story of acknowledgement. Hello, good evening, sir, Good evening. and all my dear friends. What should I speak right now? Can you please? स्वीकृति या अभी स्वीकृति, जैसे अगर इसको कहें कि आज आज इस समय पे आपके साथ ऐसी कोई भी ऐसा कहानी या किस्सा हो जो आप कहें कि हाँ, इसको अगर मैं स्वीकृति देती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। Um, when I was in my classroom, and I help all learners like as I can do. At that time, I feel like acknowledgement. Wow, what a wonderful, powerful story. Really, थैंक यू ज्योति जी फॉर शेयरिंग सच अ ग्रेट स्टोरी। Thank you. मैं स्टोरी को रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब भी वो अपने लर्नर्स या स्टूडेंट्स के साथ होती हैं और वो अपना नॉलेज शेयर करती हैं, तो उन्हें और एक्नॉलेज्ड फील होता है। क्या मैं सही हूँ ज्योति जी? आप इसको करेक्ट करना चाहेंगी? अनम्यूट है ना? कोई और रिस्पॉन्स है? कोई और आना चाह रहा हो? ओके, तो हम लोग लास्ट 5 सेकेंड्स लेते हैं। ज्योति जी ऑनलाइन, ज्योति जी है ना अनम्यूट? ओके, आप एक लास्ट बार फिर से शेयर कर सकती हैं ताकि जो लोग ना सुन पाए वो फिर से सुन सकें। Okay. Hello and good evening to my teachers and my learners. According to me, acknowledgement I feel when I was in my classroom with my learners and with my learning. At that time, when I want to share my knowledge, or if they need any knowledge, and I am able to share that knowledge, at that time I feel acknowledgement. Wonderful, Thank wonderful. you. I mean, the greatest takeaway that thank you, Jyoti ji. Thank you for giving this time and sharing your, story of acknowledgement. The very key takeaway that I am taking from here is share knowledge. When you share knowledge, of course, you feel more confident and you feel more acknowledged. सो यहाँ पे हम लोग अब आगे मूव करते हैं। एक हमारा जो मेन पैटर्न निकल के आया है, दैट इज शेयरिंग नॉलेज, द थीम दैट वी हैव आइडेंटिफाइड, वन ऑफ द सक्सेस पॉइंट ऑफ आवर वर्कशॉप। लेट्स गेट अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड अदर टूल्स। सो आप सब जो भी यहाँ हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं हम सबकी लाइफस्टाइल में लाना चाहूँगा। और अगर ये एस्पेक्ट हमारी लाइफस्टाइल में आ गया तो हमारा कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल बूस्ट ही होता जाएगा, हमेशा बूस्ट होता जाएगा। और ये जुड़ा हुआ है प्रशंसा से, ये जुड़ा हुआ है जिज्ञासा से, और जागरूकता भी इसका हिस्सा है। इंक्वायरी, जब भी हम किसी और से सवाल पूछते हैं कि आ, ये बॉल गोल क्यों है, या फिर अगर हम उस सवाल को और ऐसा बताएं कि ये पेन टूटा हुआ क्यों है, ठीक है। अब इसी को मैं बताता हूँ कि अगर हम इसको किस दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं, क्या आप पेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आप समझिए वहां पे अंतर, आप समझिए कि आपका पेन टूटा हुआ है,
आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपका पेन क्यों टूटा हुआ है, और वहीं आप किसी से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप पेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप पेन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो ये अंतर है, और ये अंतर को हम फिर से साइंटिफिक टूल से सीखेंगे कि एक इंक्वायरी अगर आपको करनी है किसी से भी, कई बार सरकारी अफसरों से हम इंक्वायरी करते हैं और हम लोग अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, और उनसे इंक्वायरी हमें ऐसे होती है कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं 10 साल से वही लोग हमारी पासबुक पास कर रहे हैं, वही लोग हमारे लिए पोस्टल तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, एक्नॉलेजमेंट इसलिए आया कि किसी से भी इंक्वायरी के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीछे उन्होंने कितना ज़्यादा हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर रखा है। इसमें 5 ज़रूरी टूल हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है पॉजिटिव अजम्पशन, कि आपको सकारात्मकता से सोचना है, पॉजिटिव पॉजिटिविटी लेके आनी है अपनी इंक्वायरी में। अब उसको कैसे लेके आएँगे कि हर सिचुएशन, कुछ भी जो आपके सामने हो रहा है, जिसके लिए आपके लिए सवाल निकल रहा है या इंक्वायरी निकल रही है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि उसमें आपको नेगेटिव क्या दिख रहा है, ये तो आपके सामने ही है। ये तो शायद हमारे एटीट्यूड में आ गया है। बट अगर वहीं पे आप +1 करें, एक एफर्ट और दें अपने कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के लिए, और उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूँढें, तो वो क्वेरी क्या बन जाएगी? वो बन जाएगा एक पॉजिटिव असम्पशन, कि आपकी शुरुआत ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से हो रही है। इसको मैं अगर पढ़ देता हूँ एक बार, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, कि एक assumption that every situation holds positive potential. This is important, very important for confidence building, because when you are giving that effort to see the positive potential, you are bringing that positive quality inside you. You know, तत्वमसी जिससे हमने शुरू किया था, जब आप सामने वाले में वो अच्छाई देख पाएंगे तो ही वो अच्छाई आपके अंदर आएगी। दूसरा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शनिस्ट प्रिंसिपल, और मतलब इस पे काफी सभ्यताओं ने काम किया है, पर इसको अगर हम बहुत अ, मतलब इसको आगे बढ़े, और ये कई बार आम तरीके से इसको कॉलेज के बच्चों में देखा गया है, कि अगर कोई सामने से बात कर रहा है तो उस बात को खत्म करने के लिए हम लोग बात करते हैं कई बार, कि ओके, या कि इट विल टेक 5 मिनट्स, ओके आई विल सी इट, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड इट। हाउ वी कैन बिल्ड इट? वी कैन टेल कि ओके आई एम फेसिंग प्रॉब्लम हेयर, और यू कैन टेल दैट ओके, जैसे कोई भी किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, लेट्स से somebody is saying that we need to make a campaign. Since I am a marketing person, I'll talk like that, कि हमें एक marketing campaign बनाना है, और आज पूरा जो world है, it's about small businesses. So everybody is a marketeer right now. Like every household is a marketeer right now. तो constructionist क्या होगा? If somebody comes up with you with an idea कि okay, I think I need to make a milk company. सो यू हैव अ, लेट्स से कि आपके पास उसकी प्रीवियस नॉलेज है, और आप बोल रहे हैं कि यार इसका पाउडर क्यों नहीं बनाते? समझ रहे हो? इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि अरे रहने दो, नहीं हो सकता, कोई नहीं कर पाया आज तक, उन्होंने किया था उनका ये हो गया, उन्होंने किया था ये हो गया। फैक्ट्स बहुत जरूरी चीज है, बट अगर आप अपने ओपिनियंस लेके आ रहे हैं जो कि मतलब जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाला का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पे ये है कि इफ यू वांट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव। इफ somebody comes up with a conversation, कोई भी आपके साथ कोई बात लेके आ रहा है, आपको उस बात पे बिल्ड करना है। और अगर आप बिल्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है? आपको एक पॉजिटिव अजम्पशन लेके आना है कि ओके ये मिल्क के बारे में पूछ रहे हैं, मैं इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करता हूँ, तो शायद ये इनको इस पे और
कॉन्फिडेंस आए कि हाँ शायद ये इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि क्या अलग अलग प्रकार के दूध होते हैं, दूध की क्या खासियत होती है, इस तरीके से अगर आप चीजों को कंस्ट्रक्टिवली बिल्ड करेंगे तो आपका भी ज्ञानवर्धन, आपको भी ज्ञान मिलेगा और सामने वाले का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जितना आप अपने आसपास वालों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। तो दो चीज अभी हम लोगों ने समझी, एक है पॉजिटिव अजम्पशन कोई भी क्वेरी के पहले, इंक्वायरी के पहले। दूसरा को क्रिएशन, कोई भी कुछ कह रहा है, बात इग्नोर ना करते हुए उस पर बिल्ड करने की कोशिश करना, उस पर एक सवाल रखना या उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइमल्टेनिटी, मतलब कि एक साथ होना। चीजें जब साथ में चलती हैं हमें अच्छा लगता है, ये इंसानों का बिहेवियर है। कई बार आपने देखा होगा कि फोन पे भी लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, साथ में टीवी भी चल रही है, म्यूजिक का भी आवाज आ रहा है, बाहर ट्रैक्टर का भी आवाज आ रहा है, कोई चिड़िया का भी आवाज आ रहा है। तो ये सारी चीज मिलके जो साइमल्टेनिटी, जो सारी चीजें साथ में चलती हैं, उसमें आपको एक आनंद का आभास होता है। ये बिहेवियर, ये ह्यूमन का इंटरनल एस्पेक्ट है, मतलब वो इस तरीके से वर्क करता है। तो साइमल्टेनियसली में हम क्या बोल रहे हैं कि वही पिछली वाली चीज को ही हम जोड़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव होने वाली चीज को ही हम बोलेंगे कि अगर आपको जो चीज प्रोसेस चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है आपका, कोई भी आप जो भी काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, तो अगर आप उसमें एक इंक्वायरी नहीं लेके आएंगे तो वो काम धीरे चलेगा, तो वो काम धीरे गति से चलेगा। बट अगर हर कोई उसमें एक-एक सवाल लेके आता जाएगा, तो वो काम जल्दी-जल्दी साफ होता जाएगा। कि ओके, इस काम को अब किसी ने कहा कि चक्का बनाने के लिए उसमें हमें पत्थर की ज़रूरत है। किसी ने कहा नहीं पत्थर की नहीं, हमें लकड़ी की ज़रूरत है। फिर किसी ने कहा कि शायद लकड़ी टूट सकती है, हमें टायर की ज़रूरत है। फिर टायर आया तो फिर किसी ने कहा टायर में और इसमें रिब्स लगाने की ज़रूरत है, उसमें कुछ टेक्सचर देने की ज़रूरत है, कंकड़ ना फँसे। तो एक पहिया जो है ये हमारे मतलब जीवन शैली का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए मैंने उसको उदाहरण लेके बताया। क्योंकि वो कर्म से बहुत जुड़ा हुआ है। और कर्म में ही मतलब अगर हम बताएं कि अगर आप कहीं पे भी कर्म कर रहे हैं और चाहते हैं कि हाँ उसका फल आपको मिलता रहे, तो वो फल आपको तभी मिलेगा जब आप अपने सवाल रखेंगे। जितना आप सवाल रखेंगे उतना आप उस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, उतना वो काम आपका काम हो जाएगा। अगर आप सवाल ही नहीं रखेंगे तो आप यही समझते रहेंगे कि शायद ये किसी और का काम होगा। और जब तक आप ये समझेंगे कि किसको किसी और का काम है, तो शायद आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। चौथा, क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? इट्स पोएटिक। आप बच्चों से सवाल पूछते हैं, आप किसी से भी सवाल पूछते हैं, कितना ही जटिल प्रश्न हो, अगर आप उसको गा के पूछ रहे हैं, तो शायद वो सवाल सामने वाले को उसको जवाब देने में और अच्छा लगे कि ठीक है, ये वाला जो सवाल है, इस सवाल में एक पोएट्री लेके आई गई है। और इसी को अगर दूसरी तरीके से बताएं तो जिस कहानी को हम बार बार दोहराते हैं, हमारी सच्चाई उसी पे आधारित हो जाती है। पोएट्री मतलब जिस पोएट्री को आप बार बार पढ़ेंगे, वो आपकी सच्चाई से जुड़ जाएगी। अब ये वाला पॉइंट मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आरती, प्रार्थना, काव्य, अज़ान, ये सब इसी पे आधारित हैं। जब आप किसी की प्रशंसा को या इंसानियत की प्रशंसा को आप बार-बार दोहराएँगे, तो वो सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, वो सारे जो गुण हैं वो आपके अंदर आएँगे। तो ये चौथा प्रिंसिपल था, पोएटिक प्रिंसिपल। इसको बोलेंगे कि जो स्टोरी हम चुनते हैं, जो कहानियाँ हम चुनते हैं, जो इंस्टाग्राम आप देख रहे हो, जो यूट्यूब आप देख रहे हो, जो भी आप चुन रहे हो, वही आपको बना रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सब कहाँ से आ रहा है, कभी आप बहुत खुश हैं,
कभी आप बहुत दुखी हैं या कभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो शायद आपको ये सोचना चाहिए कि आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी सच्चाई को बना रहा है। सबसे आखिरी सबसे आखिरी का नाम है एंटीसिपेटरी प्रिंसिपल, एंटीसिपेट करना। कुछ भी चल रहा है, उसके बीच में आप कैसे आ सकते हैं? कैसे अपना व्यू रख सकते हैं? कोई इम्पोर्टेंट बात चल रही है बट आपको लग रहा है कि हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये मिस हो गया, तो शायद ये कन्वर्सेशन उतनी प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा पाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए है एंटीसिपेटरी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आता है कि पिछली बार था जो कहानियाँ आप सुन रहे हैं या जो कहानियाँ आप पढ़ रहे हैं, कविता, वो आपका आज बना रही है। और वैसे ही एंटिसिपेटरी प्रिंसिपल में है कि जो दृश्य हम अपने भविष्य का बनाते हैं, वही हमारा आज बनता है। जो भी दृश्य है, मतलब इस दृश्य को मैं अपना दृश्य बताऊँगा तो मैं रोज़ गेहूँ देखता हूँ, कि गेहूँ कैसे फसल कैसे लहलहा रही है, तो वो मेरे आज में आता है। अगर आप जैसे अभी दिवाली आ रही है और दिवाली पे हम लोग हमेशा दरवाजे के बाहर लिखते हैं शुभ लाभ। तो वो हम एक दृश्य बना रहे हैं अपने अंदर कि जितना हम शुभ सोचेंगे, जितना हम लाभ सोचेंगे, उतना वो हमारे जीवन में आएगा। और वहीं पे अगर आप दृश्य बदल देते हैं कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप ही संकट में फँसे हुए हैं या ट्रैफिक में बीच में सिर्फ़ आप ही फँसे हुए हैं, तो वो आपका आगे का कल बनाता जाएगा। और अगर ये वाली चीज़ आप छोड़ दें और आप सिर्फ़ ये समझें कि हाँ, एक इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबंडेंस। एक अबंडेंस वाली सोच चाहिए हमें। इस दिन ये दिन मतलब बहुत अच्छा दिन है बताने के लिए कि हमारे जो दृश्य हैं, जो हम देखना चाहते हैं, उसमें एक अबंडेंट फीलिंग होनी चाहिए कि आपको जो चाहिए सब आपके पास है। और असली में है भी। मतलब जो हमारी बाकी डिमांड है, वो सारी तो हैं बट फिर से दोहराऊँगा तत्त्वमसि, जो आप चाहते हैं वो सब आप ही के पास है। तो अब हम ये पाँचों को एक बार रिवाइज़ करेंगे, आगे बढ़ने के पहले बट मैं चाहता हूँ कितने लोग जगे हुए हैं या कैसा लग रहा है उनको आप लोगों का मूड जानने के लिए, आप लोग कमेंट्स में एक-एक इमोजी पोस्ट करें। आपका मूड कैसा है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास फिर से 10 सेकंड है, आप लोग इमोजीज़ पोस्ट करिए कि आपका मूड अभी कैसा है? ओके, नाइस। अर्चना जी का आया है, ज्योति जी का आया है, अमन सराफ जी का आया है, कमेंट मूड अच्छा जा रहा है मतलब हम लोग और जो हमारा टाइम है हम उसको और एन्जॉय करने वाले हैं। ज्ञानेश्वर जी का है, थैंक यू ज्ञानेश्वर जी आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। और देखते हैं। सो लास्ट 10 सेकंड्स 10 शशि जी का आ गया है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 थैंक यू ज्योति जी। कमेंट्स को ऑफ कर दीजिए वापस। तो जो हमारी लास्ट 5 चीज़ें हम उसको वापस रिवाइज़ कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एक है पॉजिटिव असम्पशन, किसी भी सवाल को जो आप पूछ रहे हैं, आप उसमें पहले पॉजिटिव असम्पशन लेके आएँ, फिर उस सवाल को लेके आएँ। दूसरा, अगर कोई भी सवाल है, उसको आप बिल्ड करने के लिए कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पूरा अपना कह पाए कि उसको क्या सवाल पूछना है, तो आप कोशिश करिए कि उस सवाल को आप जानने की कोशिश करिए। तीसरा, साइमल्टेनिटी मतलब
अगर आपको चेंज चाहिए तो आपको रेगुलर क्वेश्चन पूछने हैं। आपको कहीं पे भी चेंज चाहिए, आपको अपने क्वेश्चन पूछना है, उस प्रोसेस को ओन करना है। चौथा, पोएटिक प्रिंसिपल, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कहानियां आप देख रहे हैं, वही आपके अंदर आ रहा है। तो इसलिए कोशिश करिए कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कहानियां आप अपने अंदर लें, जो आपके जीवन शैली को सुधार सकें। आखिरी में एंटिसिपेटरी, कोशिश करिए कि आप अच्छे से अच्छे विजुअल्स को अपने दिमाग में लाएं। इसका मैंने बहुत आसान आपको बताया है। एक स्वर्ण काल की भी बात की गई है। आप स्वर्ण काल के बारे में सोच सकते हैं, आप शुभ लाभ के बारे में सोच सकते हैं, आप लहलहाती फसल के बारे में सोच सकते हैं, या अपने आप को ही आप वहां देखने की कोशिश करिए जहां आप देखना चाहते हैं। इसके बाद हम अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड है एम्बॉडीड इंक्वायरी। एम्बॉडीड मतलब आपका पूरा शरीर, मतलब एम्बॉडीड मतलब अगर हम कहें कि हमारे घर में पानी आता है, तो वो पानी बहुत सारे एनर्जी के कारण आता है। वो सारी एनर्जी जो मिलती है, जैसे मोटर लग रही है, बोरिंग लग रही है, वहां से जो सरकारी तरीके उधर से जो मोटर लग रही है, फिर पानी जो आ रहा है निकल के, फिर आपके नल से निकल रहा है, फिर आपके ग्लास में आ रहा है, फिर आप तक जा रहा है। तो ये जितनी ऊर्जा है, अगर इस सबको जोड़ें तो ऐसी ही चीजों को बोलते हैं एम्बॉडीड। और अगर शरीर में बात करें तो अ, अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, इसको अगर आप महसूस करते हुए कुछ पूछते हैं तो इसको बोलते हैं एम्बॉडीड इंक्वायरी। अब जैसे इसमें बताया गया है कि ये आपके फिजिकल मूवमेंट को और आपके थॉट और इमोशन को एक साथ लेके आ जाता है। फिजिकल मूवमेंट, थॉट और इमोशन, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक बहुत अमेजिंग एक्टिविटी आने वाली है, और बहुत सिंपल है। इस फोटो को देख के आप बता सकते हैं। इट इज व्हाट इवन डॉक्टर्स से 15 मिनट्स वॉक। जब आप अपने शरीर को एक जगह बिठा के सोचते हैं, और वहीं पे जब आप अपने खुद के लिए एक वॉक करते हो सोचते हैं, यहाँ पे और भी चीजें आती हैं क्योंकि ये जुड़ा हुआ है बॉडी अलाइनमेंट से। अगर आपकी बॉडी जेस्चर, जैसे बात की गई थी कि बॉडी जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए। हाँ, क्योंकि अगर आप अपने पूरे शरीर के साथ सोच रहे हैं तो आप ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, और वहीं आप सिर्फ जल्दबाजी में सोच रहे हैं कि यार मेरी उंगली में लगी थी और फिर मुझे एक सवाल आया तो वो सवाल मैंने गुस्से से पूछ लिया, जबकि मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब उस सवाल को मैंने बहुत सोच के नहीं पूछा। तो कॉन्फिडेंस में यहाँ पे क्या बात आ रही है, एम्बॉडीड इंक्वायरी, मतलब कि आप अपने शरीर को पूरा इन्वॉल्व करो और फिर वो सवाल को आन दो जिससे आप बात करना चाहते हैं या जिसको आप पूछना चाहते हैं। इसका इसके इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो है, दिमाग दो तरीके के दिमाग में दो लेयर होती हैं। एक होती है कॉन्शियस लेयर, जहाँ पे आपको लगता है कि आप सब कुछ सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही हो रहा है। पर दूसरी होती है सबकॉन्शियस लेयर, जो आपकी आदतों से बनती है। जितनी आपकी आदतें अच्छी होती जाएंगी, उतना आपका सबकॉन्शियस स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे कि योगा, वॉक करना, ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन करना, इस सब से आपका कॉन्फिडेंस इधर से बूस्ट होता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी कर रहा है, ताकि वो हेल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर सके, अपने साथ रख सके। सो एम्बॉडीड इंक्वायरी का सीधे सीधे मतलब यही है कि आपको अपने पूरे बॉडी के साथ सोचना है, आपको अपने सबकॉन्शियस को इन्वॉल्व करना है, और इन सब के लिए आपको अपने बॉडी अलाइनमेंट को अच्छा करना है। और बॉडी अलाइनमेंट कैसे अच्छा होता है, इसके बहुत सारी प्रक्रिया हैं। आप धीरे धीरे उसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं, सब आप ही के अंदर है। जो जवाब आप ढूंढेंगे, तो योगा एक तरीके से वो जवाबों का उत्तर है, उसके अंदर वो उत्तर मिलते हैं। अभी तक हमने बहुत ज्यादा एक तरीके से कहेंगे कि बहुत हैवी बातें कही या सुनी है, क्योंकि आमतौर पे ये सब बातें हम करते नहीं हैं।
बट ये यहाँ पे हम लोग क्योंकि साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, जो टूल्स रोज हमें हेल्प कर सके हमारे कॉन्फिडेंस को लगातार बूस्ट करने के लिए. Because you understand that in today's era, small businesses are supported, entrepreneurs are supported. We require more leaders, we require more people who take action. So if you develop confidence, we will have all these kind of people. हमारे पास और उद्योग होगा, हमारे पास और बिजनेसमैन होंगे, और हमारे पास और अच्छी क्वालिटी होगी अगर धीरे धीरे करके सब में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है तो. अब हम आते हैं वर्ल्ड कैफे के ऊपर. वर्ल्ड कैफे एक्चुअली एक बहुत बड़ा टूल है. ये एक्चुअली मतलब इसको कहेंगे कि ये ब्रह्मास्त्र के जैसे ही समझ सकते हैं इसको. पर ये बड़ी मीटिंग्स के लिए, जैसे 400 लोग हो, 400 लोग भी अगर हो और आप इस टूल का इस्तेमाल करें वर्ल्ड कैफे, तो आप उन 400 लोगों में भी इतना अच्छा डिस्कशन करवा सकते हैं कि वो 2 घंटे के अंदर जो आपको दे के जाएंगे इनसाइट्स, वो इनसाइट एक तरीके से साइंटिफिक इनसाइट है. मतलब कोई आपको 20 years ऑफ एक्सपीरियंस कुछ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में अगर दे के जा रहा है, तो वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत यूजफुल है. यूजली डिस्कशंस बहुत मोनोटोनस होते हैं, एक ही बात बार बार रिपीट की जाती है, और जो ज्यादा बोल सकते हैं वो लोग अपनी बात हमेशा ज्यादा रखेंगे, और जो लोग कम बोल सकते हैं उनके पास कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो कोई उपाय या कोई संदेश, वो शायद उस चीज को नहीं रख पाएंगे. तो इसलिए ये टूल हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ताकि सारे लोगों को साथ में लेके आया जाए. अब इसका एक बहुत बड़ा आंसर है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, जैसे कि जो व्हील चेयर पे चलते हैं, या जैसे कि हमारे वृद्ध लोग जो शायद उतना चल के नहीं जा सकते हैं, पर आज हर कोई उसका फायदा उठा रहा है. और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी जरूरी से जरूरी चीजें जरूरतमंदों के लिए जब बनाई जाती है तो उसका फायदा पूरी दुनिया उठाती है. और अगर कोई चीज सिर्फ मतलब सिर्फ बनाने के लिए अगर बना दी गई है तो फिर वो ज्यादा देर शायद नहीं रह पाती है. तो आज जितने भी बड़े बिजनेस हैं, जितने भी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, उनमें न्यूरो साइंस यूज होता है, इस तरीके की साइंटिफिक स्टडीज यूज होती हैं, ताकि सबसे पहले जरूरतमंदों का फायदा हो. अगर जरूरतमंद उसको इस्तेमाल करने लगेंगे तो ऑलरेडी उसका जो यूसेज है वो बढ़ने लगेगा, और ये जो ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी ये ऑनेस्टली जुड़ेगी क्योंकि आप इनके लिए कुछ कर रहे हो. तो वर्ल्ड कैफे एक अच्छा टूल है. इसको मैं सिर्फ आपको यही रखना चाहूंगा कि आप इसको यूज करें आगे अपने लाइफ में. ओके. पॉजिटिव कोर रिफ्लेक्शन. थोड़ा टाइम हमारे पास कम है इसलिए अब मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा. वर्ल्ड कैफे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. इस कैफे को आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी जरूर देखें. पॉजिटिव कोर रिफ्लेक्शन. डेली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती होंगी, डेली आपको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, बट फिर भी अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है तो आपको अपने कोर स्ट्रेंथ्स पता होने चाहिए. क्योंकि वी हैव लेस टाइम, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको कैसे सोचें. आप इसको से सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सुबह जगाती है. अब इसमें उदाहरण दें, इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ कि कई बार लोग आपको छोड़ सकते हैं या आपको लेट यू डाउन कर सकते हैं, बट जो इनर ड्रैगन है, जो ड्रैगन आपके अंदर खुद है, वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा. इट्स लाइक द अल्टीमेट पावर, द इनर ड्रैगन. सो कोर स्ट्रेंथ्स, जैसे अब मैं अपनी कोर स्ट्रेंथ शेयर करना चाहूंगा. नेचर, बिलीविंग, इंस्पिरेशन, विल, आर्ट, एक्सप्लोरेशन,
एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, न्यूनेस, कुछ नया मिलना, लिटरेचर, कुछ पढ़ना, म्यूजिक, पोएट्री से जुड़ा हुआ है, नेचर, बिलीविंग, बिलीव बिलीव करना अभी सबसे बड़ा पावर है. If you are believe in yourself, you will believe in the world, and you will identify and you'll find out how wonderful this world is, how much it works for you every day. The sun comes out, the wind flows, there are trees, there are fruits, there's a lot of things that is coming out for you, for to gift you. All it needs is a seeker, someone who is seeking to find their answers. यहाँ पे आके हम लोग 1 मिनट का साइलेंस लेंगे, बिकॉज इट्स टू मच टॉकिंग एंड आई वांट टू हेयर यू मोर. तो अभी तक आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट अपने लिए अगर आपने गेन किया हो, एनीथिंग, 1 थिंग, 2 थिंग, 3 थिंग्स, प्लीज आपके सामने मेंटीमीटर का क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन पे आप पोस्ट कर सकते हैं कि आपको अभी तक अपने लिए अगर कुछ भी मिला हो. ये पूरे सेशन में वी हैव स्पेंड एटलीस्ट 50 minutes. आई होप यू हैव गेन समथिंग. सो मेंटीमीटर की लिंक आपके लिए 60 सेकेंड्स के लिए ओपन है. आप लोग साइलेंटली वेट भी कर सकते हैं अगर आपने कमेंट कर दिया है तो, या फिर आप कमेंट करें, उसमें आप एक बार 2 बार भी आंसर डाल सकते हैं. ओके. रूल्स ऑफ लाइफ, entirely enjoyed, great, loved it, knowledge, positive attitude, organization, problem solving. Wow. I mean, this is really a great response, because if there's a word like problem solving, positivity, and if you enjoyed it, I am glad that you enjoyed it. Organization, organization, wow. Because this is all completely based on community building, culture building. The better things we come up with, the better we will receive. So thank you, everybody. I mean, we'll move ahead to the last few aspects. I think generative art exploration wala abhi it will extend, but we'll ask 2 minutes, 5 minutes maximum, है ना? Okay, so the next part is um, the next part is very important actually, because आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल है. अब वो नेचुरली वो जो कोर स्ट्रेंथ है आपके, वो कोर स्ट्रेंथ आ कहाँ से रहे हैं? वो कोर स्ट्रेंथ आ रहे हैं आपके कल्चरल रूट से, और वो कोर स्ट्रेंथ आ रहे हैं आपके एंसेस्ट्रल विजडम से. तो इस आर्ट को, एक्टिविटी को शायद हम लोग, आप लोग घर पे करें. आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. कि आप 5 मिनट का टाइमर लगाएं, कोई भी अपना फेवरेट म्यूजिक लगाएं, और कल्चरल रूट्स और एंसेस्ट्रल विजडम पे आप एक आर्ट वर्क क्रिएट करें. मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा. मैं बुंदेलखंड से आता हूँ. वहाँ पे पानी कम रहता है, पर वहाँ मोर इसलिए और ज़्यादा सुंदर लगते हैं जब वो रेतीली जगह में आते हैं. अ, हमारे यहाँ पथरीली पहाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं. फिर इसके बाद हमारे यहाँ समोसा रायते के साथ खाया जाता है. तो ये सब कल्चरल रूट्स और एंसेस्ट्रल विजडम से आता है. और इस एक्टिविटी को आप लोग ज़रूर घर पे करिए. इट्स अ 5 minute एक्टिविटी एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. इट विल बिल्ड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन यू, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की ओके आपके स्ट्रेंथ आ कहाँ से रहे. लास्ट, टाइम मैनेजमेंट. अब इसमें आपको चार्ट शायद दिख रहा होगा. चार्ट में मोस्टली हमने बताया है कि द 4 stages अकॉर्डिंग टू वैदिक
एस्पेक्ट्स, बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ देना चाहता हूँ, इट्स अबाउट एलन मस्क. क्या ऐसा क्या है कि एलन मस्क सुपरमैन बन गया और लोग उस सुपर पावर वाले स्किल्स पे नहीं पहुंच पाए? द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ब्लॉकिंग. अगर आप अपने टाइम को ब्लॉक करेंगे, मतलब एलन मस्क के लिए चैट जीपीटी एक्चुअली कैलेंडर प्लानर है मेनली. क्योंकि अगर आप ऑलरेडी अपना हर चीज प्लान करके रखोगे कि 15 मिनट्स आपको करना है, फिर 15 मिनट्स आपको ब्रेक लेना है, स्ट्रेच करना है, आपको डीप थिंकिंग करनी है, आपको कैजुअल वर्क करना है, आपको ईमेल वर्क करना है, फिर आपको किसी से मीटअप करना है. अगर ये सारी चीज आप ब्लॉक करेंगे इन फॉर्म ऑफ 15 to 5 minutes, 15 minutes work, 5 minutes rest, 15 minutes work, 5 minute rest, you will have a very holistic understanding ki okay, what is going around you. Usually you, if you don't plan your day, you are always filled up with anxiety कि okay, what I'm gonna do right now, शायद मैं बोर हो रहा हूँ, शायद मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है. It's because you're not planning ahead. You're not planning कि okay, how these 15 minutes will help in my future in next 15 years. If you block your time with 15 minutes, 5 minutes, you will be confident, okay, you are doing the most work for yourself, you are doing the work for society, for your company, and you are creating a win-win situation for all. So thank you very much. It was a wonderful session for me, and I'll pass on the mic to Archana ma'am. Uh, Now, I hope everyone enjoyed this session, and there were lot many takeaways. I'll just start from the bottom, which I took away from this session was what I think is just don't plan your things. You have to act on that. Manage your time management. Yeah, I would say manage your time management so that you just don't plan. You also need to act on your plans. देन इंट्रोस्पेक्शन ऑफ योरसेल्फ. आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये आपसे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं समझ सकता. सो इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी essential for yourself, and this of course builds confidence. Then how to know your inner strengths. हमारी inner strengths क्या है, सुबह उठने के बाद हमें किस चीज़ को देखकर हमें एनर्जी मिलती है, all that is also important. And knowledge sharing, yes, as he said, knowledge sharing is also important, which builds in confidence. जब हम अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करते हैं या शेयर करते हैं, तो it gives boost in our knowledge, and it also builds confidence. So I hope you all enjoyed the session, and if you have enjoyed the session, please do comment in the chat box and let us know. And I hope, thanks to you all, thanks for being so participative, to everyone, and hope we'll meet again soon. Thank you so much. Thanks, Shailesh ji. Thank you so much for the wonderful session. Thanks to our studio team, to our IT team, and all the backend support from our team also. Thank you very much.